Okay, students, we have done reading of chapter number 2 of class 3rd, that is changes in the school and neighborhood. Now come on the notebooks, open your fair notebooks and let us start lesson number 2, that is changes in the school and neighborhood. Content is first word we have to hard words Palathon. Second one we have to do name the following, and the third one we have to do the question answers. Okay, first one we have to do the hard words Palathon, then we will do name the following and then question answers. Okay, first of all write in the notebook like this, and now we are going to start hard words Palathon. First word is hard words. First word is happening. 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 First of all, you have to learn the spelling of happen. 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 ING. Happening. Clear? You have to write this in the fair notebook like this only. Writing must be neat and clean. Okay. Second word is admission. Add MISSION. Mission. Admission. Third one is increases. 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 Second word, fourth word is decreases. 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 And the fifth word is buildings. BUILD. Build. INGS. Ings. Buildings. Next one is constructed. CONS. Cons. TRUCT. Trucked. ED. Tructed. Constructed. Next one is according. 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 Next one is participate. 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 Your words must be in the lines. Ninth word is decision. 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 Tenth word is activities. 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 Next one is migration. 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 Next word is movement. MOVE. Move. MENT. Ment. Movement. Next word is migrants. EMIGRANTS. Migrants. Migrants. Next word is sensitivity. 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 Next word is struggling. 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 Clear? These are the 15 hard words you have to do in your fair notebook. Writing must be neat and clean. Write in proper lines. And next we have to do the name the following. Name the following. You have to only learn the underlined words like the area. First one is, you have to write this in your fair notebook. The area around your home or your school, कि जो एरिया आपके घर के आसपास या फिर आपके स्कूल के आसपास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड. उसे हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड. सेकेंड वन इज बिल्ट. बिल्ट मीन्स कंस्ट्रक्टेड. बिल्ट मीन्स कंस्ट्रक्टेड. नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर. कि लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह
एक जगह से दूसरी जगह सेटलमेंट करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज द पीपल हु माइग्रेट। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स। क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स। नेक्स्ट वन इज पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, कि जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, जैसे कि इंडिया से लोग अमेरिका गए, इंडिया से लोग कनाडा गए, तो उन्हें बोलते हैं ई माइग्रेंट्स। क्लियर? आई होप यू क्लियर द नेम द फॉलोइंग। प्लीज राइट इन योर fair notebook, pause the video and write in your fair notebook. Okay, next one is question answers. Come on the question answers. First question is write any 3 ways in which school change, कि 3 चीज़ें लिखनी है जिसके हिसाब से स्कूल में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। फर्स्ट पॉइंट इज, इसमें 3 पॉइंट्स पूछे हैं ना हमसे, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, कि या तो स्कूल में बच्चे ज़्यादा और आ जाते हैं या फिर स्कूल से बच्चे पुराने हट जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। न्यू क्लासरूम्स एंड न्यू स्कूल बिल्डिंग्स, कि नए क्लासरूम्स होते हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन जाती हैं। थर्ड वन इज़ ओल्ड टीचर्स लीव एंड न्यू वंस ज्वाइन द स्कूल, कि पुराने टीचर्स स्कूल छोड़ के चले जाते हैं और न्यू टीचर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसको भी हम एक चेंज बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ नेबरहुड, कि नेबरहुड क्या होता है? यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ नेबरहुड? इट मीन्स एरिया अराउंड योर होम और योर स्कूल। इसका मतलब है एरिया, चाहे तो आपके घर के पास या आपके स्कूल के पास की एरिया को हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड। क्या बोलते हैं? नेबरहुड। मेंशन एनी 3 चेंजेस दैट मे बी इन अ नेबरहुड, कि आपके नेबरहुड में कौन कौन से 3 चेंजेस ऐसे हैं जो हो सकते हैं? न्यू शॉप्स ओपन, कि आपके घर के पास कोई भी नई दुकान खुल सकती है ना। सेकेंड वन इज़ न्यू ट्रीज आर प्लांटेड, नए नए पेड़ उगा देते हैं हम, उससे भी अच्छा लगता है, उससे भी चेंजेस आते हैं। द ट्रैफिक इंक्रीजेज, कि आपके घर के आसपास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये ट्रैफिक से भी बहुत बड़ा चेंज आता है। नेक्स्ट वन इज़ इन व्हाट वेज कैन वीमेन टुडे इंजॉय इक्वल राइट्स, कि आज के ज़माने में वीमेन को भी मैन के बराबर इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, तो हम इस बात को कैसे शो कर सकते हैं? सी वीमेन कैन मूव एनीवेयर, कि देखो आज के ज़माने में वीमेन कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जाके पढ़ा सकती है, कोई भी ऑफिस ज्वाइन कर सकती है, कहीं भी जॉब कर सकती है ना। जैसे अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बट पहले के ज़माने में ये सब पॉसिबल नहीं था। लेडीज़ को घर के बाहर जाके पढ़ाना, कोई काम करना अलाउड नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन डू जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, कि वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब कर सकती हैं। नाउ दिस चैप्टर इज completed. You have to write this in your fair notebook. You have to pause the video and write in your fair notebook. Okay. Next one is